started. We will mark the attendance in about 10 minutes. Okay, this is the simple neural network that we discussed last time. करना हमने ये है कि we have got the weights and biases. स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। चले, that is good. Okay, so last time we did some of the calculations and we did not have time to finish it. आज इसको quickly conclude करते हैं so that you will have the solid lecture at the end. और उसके बाद हमने आज स्टार्ट करना है बैक प्रोपिगेशन. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम and do the necessary calculations. ये जो हमने लास्ट टाइम किया था, I'm just going to minimize it. यार गैस चलेगी यार, तो मैं क्या कर सकता हूँ पबजी यार। बाद में केटीएम खेलता हूँ, उससे रैंक नहीं ना करता। उससे बचता तुझे किस तरह पबजी? हाँ केटीएम खेलता हूँ। किस पे? पबजी खेलना बंद कर दें, रैंक आपका जो है ना उसमें आप ब्रिगेडियर भी हो जाएंगे तो प्लॉट नहीं मिलेगा. कम ऑन, सो कम आउट ऑफ पबजी. दुनिया में और भी बड़ी चीजें. One of those important things is machine learning. Okay, so we are going to do the calculation once again. सर प्रेजेंट. वेरी गुड. प्रेजेंट. आपका नाम मैंने बोला नहीं है और आप पबजी खेलते खेलते प्रेजेंट हो गए. ओके, वी विल मार्क द अटेंडेंस इन 10 minutes. All right, so the calculation is going to be, ये हमारे पास फीचर वेक्टर है. We are going to use the same feature vector. No changes. We are going to use the same weights. No changes. Bias भी हमने last time calculate किया था. The weights of the next layer and the bias over here. And what we are going to do is just modify the activation function and see how that gives us the classification results. ये जो unnecessary चीजें उनको मैंने delete कर दी है. Coming back. Right, so first let me write the weights and then we can have the summation and rest of the things. Pink में लिख देते हैं weights. So 5.1 will get multiplied with 1.14. Then added with something multiplied with minus 0.42. Then something will be added multiplied with 1.93. Then 3.74. And the last is the bias minus 2.18. अब इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं. सो वी हैड 5.1 प्लस 3.5 plus 1.4 plus 0.2 into all of these. All right, so if any one of you is working on it, can we have the answer of this summation?
सर मेरे पास 5.6 आया इसका। इसका आंसर बिल्कुल इत्मीनान से आपने देखना है। लास्ट टाइम भी देयर वाज कंफ्यूजन, जी सर। students were coming up with all the possible answers, so we should have very straightforward answer. जी, आपके पास इसका आया है 5.6. यस सर। श्योर? सर मैंने अभी भी कैलकुलेट बस यही किया है। Very good. Okay, now we are going to change the activation function and we shall be using the tan h. अगर इस आंसर को, this intermediate answer that we got, if we call it z, the calculation is going to be e to the power z minus e to the power minus z divided by e to the power z plus e to the power minus z. There is a very common problem that I have observed. Students minus or plus को consider नहीं करते when they are calculating these. So I would recommend that you very carefully put in the values in your calculator and then give me the answer of this 5.6 given to this function. G, what is the answer of this tan h of 5.6? There, let me write the weight vector that we have here. 1.4 0.99 minus 1.86, ये वही है 1.93, 2.18 and last is सर 0.999 आ रहा है। 2.29. सर पहले 5.6 कंफर्म करा लें। वो आप पे यकीन है बच्चों को? हसनैन भी को सर कंफर्म है 5.6 5.6 आ रहा है। ओके सर, ओके ठीक हो गया ये। So the final answer that you are telling me is 999 Very good. Now you have to do the same thing over here. Same चीजें, input feature is the same, just the multiplication weight shall be different. This will give you one answer. सर 6.058। 6.05 हमारे पास यहाँ आ गया, और जब इसे हम ट्रांसफर फंक्शन को देंगे, अगेन इट विल बी 0.99 सर। a positive number, 0.999. All right, so the next set of calculation is going to be based on this multiplied with the weights of the second layer. So let me just scroll it up a little. इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सेव भी कर लेते हैं so that we don't lose the intermediate work. Okay जी, so
Now the calculation will be 0.99 into minus 3.38 plus 0.99 into 3.8 plus the bias is minus 3.38. Oh सॉरी, नॉट 3.38, मैं दोबारा ये लिख दिया, सॉरी बायस यहाँ 3.81 माइनस 3.81। गौर से देखें, ये 3.38 है, तकरीबन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3.8 है, तकरीबन 1 से हो रहा है। इनका आंसर जो है ना वो तकरीबन माइनस 3.39। Very good. Now again, if this is given to the activation function, सर ये माइनस 0.99 कह रहा है। वेरी, नहीं तो सही कह रहा है, आप डर क्यों रहे हैं? अच्छा, ओके। अगर आपको याद हो, वी डिस्कस्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द tan हाइपरबोलिक फंक्शन, कि ये 0 पे 0 कहेगा। अगर यहाँ 0 होगा तो इट विल गिव यू आंसर 0। अगर पॉजिटिव में होगा तो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव में होगा तो यू विल गेट अ नेगेटिव नंबर। सो द आंसर राइट नाउ इज क्या है जी? माइनस 0.99 सर। 0.99। आगे भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है तो जस्ट लीव इट। ओके, दिस इज द output that we got from this feature vector. Now quickly we have to do the same thing with the other feature vector, and let's see if we get the same thing over here or not. Select क्यों नहीं हो रहा? All right, so the same weights are going to be used. Keep that in mind. हमने weights में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं करनी है, because it is the same network giving us the second set of results, and the only difference will be the values of the weights. इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम, नहीं सॉरी, इन वाले को, and then let us write these again. G. So what do we get as the answer? इत्मीनान से करें, नो रश, नो हरी। गलत जवाब आप लोगों ने नहीं देना, कोशिश करें।
सर इसमें मेरा 14.951 आया 14.951। 951। चले मैं आपको इसका क्विकली जवाब दे देता हूं कि जब 10 करेंगे तो ये अगेन 0.999 आएगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन सेकंड? जी सर कर रहा हूँ। Yes, sir. 14.95 ही है. वेरी गुड। क्योंकि 0 से ऊपर है एंड इट इज मोर देन 5.6, सो क्विक गेस इज दैट इट विल बी 0.999। एक मिनट 14.95 ही आया सर इसका। तो ठीक है, आई एग्री विद यू। दूसरे का क्या आया? सर मेरा इसका 15.481 आ रहा है। ठीक हो गया। सर 15 कंफर्म कर लेंगे। यस सर यही आ रहा है सर 15.48 अगेन दिस इज a positive number, तो 0.999 आ जाए। 0.999। So the calculation is going to be very similar to this. So the final answer will be very similar to what we had here. इसका मतलब है दोनों माइनस में है, so both the samples belong to the same class. इसे right now we are going to stop here. इसे मैंने सेव कर दिया। We can do a sample from the other class also, लेकिन अब टाइम नहीं है, we have to start with back propagation. And in the meantime, we are going to have the lecture also. Okay, so now the attendance. How many students are present here? 27. Very good. Sharoz Hassan, प्रेजेंट सर। Mohammad Shoaib, प्रेजेंट। Usman Ali, प्रेजेंट सर उस्मान अली। Fareed Ahmad, Salman Badr, Yes, sir, present. Sama Khalid, Yes, sir, present. Amirun Nisa, Present, sir. Hamza Khalid, Hassan Ali. सर हसनैन प्रेजेंट सर। Oh, प्रेजेंट सर हसन अली। sorry. हसन अभी आपका नाम नहीं आया, अभी हसनैन था, सॉरी। ओके सर। उस्मान जाहिद, उस्मान जाहिद, present. मोहम्मद अली हमजा, अब्दुल मनान, मोहम्मद कासिम, Present, sir, Kasim. नोमान अजमल, प्रेजेंट। महद हुसैन, प्रेजेंट सर। दानियाल इरफान, Present, sir, Daniel Irfan. उमैर तौकीर, Present, sir. असफंद खालिद, लुकमान अरशद, मिनाहिल मलही,
Sayyid Waleed Umar, Present, sir. Nimra Saeed, Akbar Hussain Sabri, Present, sir. Hafiz Uzair, present है, Present, sir. was answering. Warda Arshad, Present, sir. Fatima Shahid, Present, sir. Moiz Rizwan, Present, sir. Anika Ilyas, Umar Sattar, Hassan Ali, तो प्रेजेंट है. कोमल वाजिद, Present, sir. अब्दुल्ला महमूद, Present, sir. हैदर अमान, हैदर अमान प्रेजेंट है. Present. एंड मोहम्मद मुबशर हुसैन. Present, sir. Okay जी, so we have 24 presents, जबकि यहाँ स्टूडेंट. सर असफन खालिद प्रेजेंट. हाँ, असफंद खालिद. अब देखे ना ये बीच में. ओके सर एब्सेंटीज के नाम बता दें. नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास. उनको नजर आ रहा होगा जो एब्सेंट है. फरीद अहमद, ठीक हो गया, 25 हो गए. So anybody who's absent should remain absent. Okay, if सर प्लीज आप आज ना उसका कोई सोल्यूशन बता दीजिएगा जो वीडियोस हैं डाउनलोड होने भाई के लिए. मैं चले मैं देखता हूँ. लेट मी सी. ओके सर. ओके. पूरी कोशिश करते हैं. और सर निम्रा ने आपको बोला है उसका माइक का इशू है. चले, अब मैंने अटेंडेंस क्लोज कर दी, कोई बात नहीं. Okay, so we have almost 1 hour. चले, let me close this. Let me start another. Okay, so we are going to start the next topic, and that is back propagation. All right, so the idea is that we have to propagate the error information back to the सर मेरा नेट का इशू हो गया था, मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें. जी नाम बताएं. निम्रा सईद. Okay. So we have to propagate the error
information to the previous layers. Propagate का मतलब होता है to communicate or to move something. So the error which is calculated at the end, just like the linear regression or the logistic regression, the error here is calculated at the output, which is the last part of the network. So unless we have seen what is the final outcome, we can never actually tell whether the weights in our network are correct, whether we need to update anything, whether we need to change the weights or move in the opposite direction of gradient descent. Whenever we start the experiments, we have seen that the weights are in the first iteration or in the very first epoch. We start with randomly initialized weights. What it means is that there is no established rule that whether it's going to be 1, 2, 3, 4 or a negative number or anything. However, there are some proposed methods that we should be initializing the weights at the beginning of the experiment with numbers usually from a uniform distribution. The numbers are floating point numbers, ये जो weights के लिए होंगे, which will be between 0 and 1, preferably. माइनस में भी कर सकते हैं because it will change eventually. सिर्फ पहली epoch के लिए this is the consideration. Then sometimes दूसरे क्लास को मैंने बताया था कि if we get the time we will discuss the algorithms by which the weights are initialized, but a very simple rule of thumb जो कि काफ़ी इस्तेमाल होता है. Let's suppose we have got a network with 3 inputs, then it has 2 hidden layers, each one having further 2 hidden layers, and then these combining back into the output, and then this is the final. Now this, if you consider it a graph, each of these circles can be considered a node and each of these lines are the edges. Therefore, the initialization of the weights, one of the methods is to look at the in degree and out degree of the graph, and based on that the values are selected from a uniform distribution. So we will be discussing this thing if we get enough time during this semester. Otherwise, just remember that the weights are randomly initialized. It does not matter कि पहली दफा में आपने सही आंसर लाया या नहीं. Then the error is calculated. सर ये between 0 और 1 है या 0 भी हो सकता है?
जीरो के साथ कर लें. If you start with zero, you will get maximum error because the output is going to सर be वो all सारा तो zero. जीरो हो जाएगा, सिर्फ बायसेस ही वैल्यू हो जाएगी आगे. Yes, लेकिन उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट आइट्रेशन जो होगी, नेक्स्ट epoch, यस सर. the very next epoch will try to converge. लेकिन सर अगर हमारा सारा ही जीरो होगा, बायसेस हमने एक ही मतलब सबको सेम ही वैल्यू देनी है, तो बायसेस भी हम रैंडम ही दे रहे होंगे, सबको जीरो दे दें. तो वो सर हो जाएगा इस तरह. Yes, yes. In the very next epoch, the values will try to converge. ओके सर. ठीक हो गया. वो कैसे? Because we know that this is the epoch. एक epoch से दूसरी epoch जो है, that is the gradient of the error. So if we draw the graph which is giving us the error versus the gradient, we would have something like error, and this is the gradient of the error. Sorry. Is the error, and here we have the epochs. So we start with the first. कोई भी random value हम ले लेते हैं. बहुत ज़्यादा error भी अगर आपके पास आ जाता है, in the very next epoch it is going to get corrected, and it will try to converge. ये जो नीचे को जा रहा है, this is the word converge. You know that. Let's suppose if we take the example of your famous mx plus b. आपने m की वैल्यू जीरो कर ली, b की वैल्यू जीरो कर ली, doesn't matter. In the end you will get a huge error. So what will happen is that m new is going to be m old minus the alpha into the partial with respect to m. Partial with respect to m, अगर आपको याद हो तो it multiplies it with x. So even if this was zero, next पे अगर माइनस की वैल्यू आएगी या प्लस आएगी, this is definitely going to change. So the new m will be different from the previous one. All right? यस सर, समझ गया सर. थैंक यू सर. So it does not matter. लेकिन जीरो से कोशिश करते हैं कि ना करें. एक convention है. It is not a rule, it is just a convention that it is better that we should have some floating point numbers. छोटे छोटे numbers के साथ we can do that. ये यहाँ लिख देते हैं. All right, so this is your favorite equation. We will try to have the error converging. The idea here is that if epochs are numbered, if we say that error is E and epochs are 1 till k, कोई भी number है, then we can say that the gradient of the error is the error estimated at epoch k minus the error which was estimated in the immediately previous epoch, k minus 1. So if we are considering this to be epoch number k, if this is k, ये मैं लेफ्ट पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये k minus 1 हो जाएगी. इन दोनों का आपने फर्क देखना है, and for that we have the rise over run. आपको पता चल जाएगा what is the slope over here. So based on that, we will have three possibilities. Either it is going up, increasing, or it is decreasing, or it is becoming flat. Almost flat, very insignificant change इसके अंदर जो आएगी, and then we shall stop. This we have discussed as the validation stop. ये हम पहले इसको देख चुके हैं. So
The problem is that when we have the network, we start from the input, giving it to one layer, second layer, third layer. All this thing is happening at this point, at the very end. This is where we have the output, and we take the difference between the output and the actual. So whatever we have given to the network in the very beginning, आगे 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 होके यहाँ हमें पता चल रहा है. So now we are going to find a method so that if we talk about the total error कि कितना आया था, we want to see what was contributed by this layer, what was the contribution of this, and this. So what we are looking at is sort of a sequential approach. Why do I call it sequential? अभी आपने ऊपर एक कैलकुलेशन की थी ANN की, in which we gave the input feature to the first layer. The activation of that became input of the second layer. अगर इससे ज़्यादा भी होती हैं तो this is how the values are going on and on and on. Whereas when we are estimating or trying to estimate the error, it is only done at the end, and then we have to see what was contributed by this and this and this. So it is a sequential approach. In the beginning, feed forward will take it from the input to the output, and then back propagation will bring it back towards the previous layers. The error will be calculated at the end. सबसे पहले ये layer जो, let's suppose if this is the output and this is the output -1 layer, then this is output -2, output -3. So this is how the weights will get updated on and on and on. This sequential approach, synonymously, we can call it the chain. Chain होता है कि एक के साथ एक चीज लिंक हुई है. And this you have studied very nicely in the calculus subject. And when we are trying to find out the contribution of something, we call it differentiation. When we have a single term, we just find out the contribution of that single term into the final answer. Let me write it down so that we know that the example is understood by all. This is the formula, and that gives us the output. We calculate the error. Let's use green color. We calculate the error. And now there are two things. एक हमने M देखा था, and the other is B, which are contributing to this. Therefore, when we are going back, we will have to find out the partial contribution of B and partial contribution of M. You know it already. We have said these things at least 100 times up till now. But another important thing is that if we have a longer polynomial like m1 x1, m2 x2, and this goes till mn xn, or end पे b हो जाएगा, we will have to find the contribution of each of these coefficients. ये नहीं हो सकता कि किसी एक को कैलकुलेट कर लें तो you get the final answer. To further elaborate this point, let us have a simple network. Let's suppose this is your complete network.
It can have a single layer, it can have any number of layers, and we are looking at either a part or whole of the network, does not matter. किसी एक नोड को हमने एग्जांपल के तौर पे देखा है. Out of this network जो हमने ऊपर बनाया था, we can take any node. What is happening is that it is getting some input which is either a single number or it could be a vector. So either it is a scalar or a vector, it will belong to, let's say, n dimensions. यहाँ n है, so we are getting the input n. The output of this particular node could be just a single scalar. जिस तरह हमने इसका आंसर देखा है, एक स्केलर आंसर आता है, or it may be a complex output feeding the next layer within the network. So either it will be just a single number scalar, or it may have a vector of outputs given to us, and that we can say are कोई भी इसके साथ हम लगा लेते हैं polynomial. If this is n, let this be q. So q is the dimension of the output. So our network is a function which transforms n number of inputs into q number of outputs. Now, a very common problem, a very common misconception with the students, this n and q may or may not be equal to n. All these possibilities exist. अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं, दो आउटपुट्स हैं, q will be equal to n. If you have 4 inputs like the iris data set and you have 3 outputs, q will not be equal to n. If you have the cancer data set with 9 inputs and that goes out into a single neuron telling us yes or no, then it is a different case. So all these are possible. Another important, जो आपने ये ब्लैक वाला नेटवर्क बनाया, ये तो सर असल में हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही है ना. देखें, जो न्यूरल नेटवर्क है ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आपको लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन अब्दुल मनान ने किया था, दैट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लॉजिस्टिक रिग्रेशन. बात सिर्फ ये है कि इफ वी हैव ए वेरी सिंपल नेटवर्क mx प्लस बी गिविंग अस द आउटपुट, और आउटपुट को हमने एक्टिवेशन फंक्शन से गुजार लिया, दिस इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको हमेशा एक डिसीजन बाउंड्री देगा, बट इफ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री, व्हेनेवर वी आर चेंजिंग द डायमेंशन, इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ फीचर्स सर आप बढ़ा रहे हैं और आउटपुट. अब गौर से देखें, अगर n is let's suppose 4, ये एग्जाम्पल है, n is let's suppose 4, और q जो है ये हम कर देते हैं 8, इसका मल्टीपल बन जाता है. आप कहेंगे कोई खास फार्मूला यूज हुआ है. लेट्स सपोज दिस इज 6, q is 6. इसका क्या मतलब है? दैट वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ फीचर्स. Whenever we are increasing the number of features, we are increasing the dimension. Dimension increase होगी तो instead of a single plane, you may be looking at a very complex hyperplane. आपको ये मैंने करके भी दिखाया था. एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क है, वो तो सर नहीं ना इसकी डायमेंशन बढ़ा सकेगा. सिंगल, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं कर सकेगा, लेकिन एक न्यूरल नेटवर्क कर सकता है. यस, मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि ये जो गोला बीच में लगाया हुआ है, डू नॉट कंसिडर इट टू बी ए सिंगल न्यूरॉन. ये सिंगल न्यूरॉन नहीं है, इट इज ए कंप्लीट नेटवर्क. अब इस वक्त पूरा चले बना लेते हैं. सर आपने एक ये भी बात की थी कि हम जितने इनपुट्स होते हैं, जो इनपुट वाली लेयर होती है, जितने फीचर्स होते हैं वो हमारे इनपुट होते हैं.
यस तो सर हर एक में तो सिर्फ mx ही जाएगा ना, यानी कि एक m जा रहा होगा और एक x जा रहा होगा। ठीक हो गया। फिर लेकिन सर ये फिर इससे ये जो ये वेक्टर जा रहा है और वो सिंपल इनपुट जा रहा है, इसमें कैसे डिफरेंस हम कर सकते हैं? एक दफा दोबारा पूछे क्वेश्चन, लेट अस राइट इट सर आपने जो पहले जब आपने ANN हमें पढ़ाया था तो आपने कहा था जो इनपुट लेयर है उसमें हर एक न्यूरल नेटवर्क एक इनपुट ले रहा होगा, जो कि एक m और एक x हो रहा होगा, यानी कि एक वेट दे रहे होंगे और एक ही इनपुट दे रहे होंगे ठीक है, रैंडम ठीक कोई हो भी। गया। ओके लेकिन सर आप यहाँ पर हम यहाँ पे पूरे एक इसे दे रहे हैं, वेक्टर दे रहे हैं इनपुट। यस। सर अब ये ये गौर कंफ्यूज से कर गया देखिए मुझे। क्या चीज। ये सर ये जो वेक्टर और जो आपने बताया ना, ये सर मसला कर रहा है। अच्छा, ये मसला कार है, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस यूज ए डिफरेंट कलर एंड लेट अस ड्रॉ ए लाइन हेयर। ये थोड़ी सी जो चीज है ना, इट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। लेट सपोज आपने एग्जाम्पल की थी दैट there is only one feature, whether the marks will pass or fail the student. याद है? यस सर। ठीक है। Marks are the only feature X. Yes or no? यस सर, ऐसे ही था, हमारा एक ही फीचर है। ठीक हो गया। Yes, आपके मार्क्स आ गए, लेट सपोज 150 मार्क्स आ गए। कितने में से आए उसको मैंने अब लेके आना है इनटू द रेंज 0 to 100. So what I'm going to do is convert this by using a formula mx plus b. b में कहता हूं जी, आपने खाली पेज पे अपना सिर्फ नाम लिखा तो आपको 10 मार्क्स जरूर मिलेंगे। ऑल राइट। और m जो है, लेट से दिस आई थिंक के 0.7 हो जाएगा। अब आपने वैल्यू मुझे कोई भी x की दी, लेट सपोज आपके मार्क्स आ गए 20 इंटू 0.7 इज 14 जमा 10 जो है आपके पास आ गया 24। ऑल राइट। यस सर। अब आपने इसे दिया टू योर ट्रांसफर फंक्शन, जिसमें आपने इफ कंडीशन लगाई थी कि इफ दिस आंसर, ये जो हमारे पास बीच में z आ रहा है, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन पास। यस सर, ऐसे ही है। यही था जी सर, बिल्कुल। आपको ये एंड पे बता देगा 0-1, पास या फेल बता देगा। दिस इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ऑलराइट। यस सर। अब हम आ जाते हैं दूसरी एग्जांपल पे, विच इज ऑफ द आइरिस फ्लावर। आइरिस में वी हैव गॉट 4 फीचर्स। ऑलराइट। यस सर, ऐसे ही है। We will have 4 inputs. और let's suppose ये सारे जो हैं, ये दो जो हैं ये इसको प्रोवाइड कर रही हैं और ये दो, वैसे सबके साथ ये कनेक्ट होना चाहिए। दोबारा बना लेते हैं डायग्राम। ये अभी आप ऐसे करके आए, आई डोंट नो व्हाई यू आर स्टिल। सर हम इसे, ये जैसे हमारे 4 फीचर्स हैं, इन्हें भी तो हम पूरा स्केलर क्या के दे सकते हैं ना। एक मुझे चीज बताएं। जी सर। अभी आपने ऊपर एक चीज कैलकुलेशन की थी, दूसरे जो हमारा ANN वाला पेज था उस पर कैलकुलेशन की थी। जी सर। याद? लेट्स जी सपोज ये आपके फीचर्स हैं x1 x2 3 4। इनके नाम लिखते हैं हम ताकि यू शुड नॉट कंफ्यूज देम। अब ये जो हमारे पास हिडन आ रहा है, लेट्स कॉल इट हिडन 1 और ये हिडन 2 हो जाएगा। ऑलराइट। अब हिडन 1 की कैलकुलेशन क्या होगी? H1 इज इक्वल टू
x1 इंटू जो भी इसका वेट होगा यहाँ w1 प्लस x2 प्लस w2, ये सारा होके x4 तक जाना है इसने, यस सर ऐसे ही है, और इसके साथ इसका बायस आ जाएगा, यस सर, और h2 क्या हो जाएगा, इसी तरह सेम चीज होगी और उसकी बायस आ जाएगी। यस सर, ठीक हो गया, यस और नो? यस सर चारों बिल्कुल, इनपुट्स गोइंग इनटू ऑल फोर। यस सर, एंड पे आपके पास जो आंसर आ रहा है उसमें दो पोर्शन है, वन इज h1, the other is h2. So what you are doing is going from 4 dimensions, ये 4 dimensions है, यहाँ अगर मैं लिखूं I would say this is belonging to R4, और इस वक्त यहाँ क्या आंसर आ रहा है आपके पास? सर आप नंबर ऑफ इनपुट्स को वो बता रहे थे n, यस सर मैं समझ रहा था कि वो जैसे वो पूरा जो वेक्टर है ना वो एक न्यूरल नेटवर्क हो जाएगा, यानी कि जैसे x1 था ना, मुझे हाँ ये जी, लग रहा था। नहीं, अब ये जो x1 से x4 तक है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, यस इसे सर, आप आप वेक्टर की जी, ये पूरे नंबर ऑफ फीचर्स को पूरा एक वेक्टर कह रहे हैं। यस, मैं हमेशा एक यही इनपुट होता है। को एक वो समझ रहा था। जी सर, ओके सर, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब ये जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दिस इज गोइंग इनटू R2। यस सर, लेट्स सपोज इससे आगे मैं बना देता हूं 3, तो ये हर एक जो है हर एक के साथ कनेक्टेड होगा, ये आपको पता है। यस अब सर यहाँ बिल्कुल। जो आ जाएगी डायमेंशन, दैट इज गोइंग टू बी R3, एंड सर राइट? जो अब हमने एंड पे सिग्मॉइड करना है, तो सर वो Q6 पे कैसे जा सकता है? ओ अल्लाह माँ, क्या हो गया आपको? अभी आप ये करके आए हैं। चले, सर H1 जो है, H1 अब क्या बनेगा, ये सारा होगा, यस सर, राइट? और इस पे सिग्मॉइड भी आपने लगाया था 0.99, अभी आप खुद निकाल के आए हैं। जी सर बिल्कुल। इस पूरी कैलकुलेशन का आंसर आ रहा था समथिंग 5 पॉइंट समथिंग, और उसके बाद जी 0.999 आ गया। बिल्कुल तो सर, H1 is going to be 0.999, H2 is 0.999। बिल्कुल सर, ये अब आपके पास दो आ गए। नाउ दिस इज ए फीचर वेक्टर फॉर द सेकंड लेयर, यस और नो? यस सर, क्लियर है। नहीं हसनैन, अभी भी आप फंसे हुए। ये नहीं फीचर सर, वेक्टर था फॉर द इनपुट सर लेयर। वो ऊपर वाला जो था ना, जो आपने एक डायग्राम में एक न्यूरल नेटवर्क में बताया ना, वो सिर्फ ये कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि आउटपुट तो सिर्फ 0 1 में आएगी ना। यार इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गोले बना लें, ये लें यस, अब सर क्लियर है, क्योंकि इसमें से और ये बना जो, लें और इनको, यस। सो यस सर, ये अब ये मल्टीपल नंबर 0.99 ऑफ, सिग्मॉइड हो गया। यस सर, अब मैं समझ यहाँ गया हूँ। जो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी आउटपुट ऑफ H1। आउटपुट ऑफ H1 जो है, इट विल बी 0.99 मल्टीप्लाइड विद द वेट ऑफ दिस लिंक, जो भी होगा इस पे। अब यहाँ लेट से आउटपुट OH1 हम लिखते हैं इसको, मल्टीप्लाइड विद जो भी यहाँ वेट होगा, लेट से इसको हम कह देते हैं W4, यहाँ आ गए थे W10 कह देते हैं, ऑल राइट। यस, यस सर, अब ये यहाँ गया, यहाँ फिर जो चारों की समेशन, इन दोनों की समेशन होगी और एक्टिवेशन होगी, और फिर आपके पास एक आंसर आएगा। लेट सपोज ये आंसर आ जाता है फिर -0.91, और इसका आ जाता है -0.7, और इसका आ जाता है +0.99। तो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिवेशन। ओरिजिनल फीचर जो है, अभी हमने एग्जांपल में देखा है कि पेटल की लेंथ 5.4 सेंटीमीटर भी आ रही थी, लेकिन जब ये एक्टिवेशन आपके पास लग जाएगा, योर आउटपुट्स ऑफ हिडन 1 या हिडन 2 लेयर हो या हिडन 3 लेयर हो, जितनी भी होंगी, दे विल बी इन द रेंज ऑफ -1 ऑन वन साइड या 1 ऑन द अदर साइड। ये सारी इसके दरमियान आ जाएंगी। सो वी आर चेंजिंग दिस R4 जो कि बहुत बड़े बड़े नंबर थे, इनटू -1 और 1 स्क्वाश कर रहे हैं, प्लस
वी आर चेंजिंग द डायमेंशनैलिटी। 4 को हम कभी 3 कर रहे हैं, कभी 2 कर रहे हैं। यस सर, अब बिल्कुल क्लियर है, अब नहीं भूलेगा। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, मसला पता है क्या है, मेरी ना इधर सुबह से लाइट गई भी है, बार बार मेरा फोन ना ऑफ हो रहा है, चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है, पावर बैंक भी एंड हो गया हुआ है। तो वो मैंने अटेंडेंस लगाने, मैंने शुरू में मीटिंग ज्वाइन की थी, लेकिन वो फोन ऑफ हो गया, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर तो वो इशू आ रहा है, अटेंडेंस नहीं मेरी मार्क हुई। अगर पॉसिबल है तो अटेंडेंस लग सकती है। आप अब्दुल मनान है ना? हाँ जी। वेरी गुड। सर चले मेरी फरीद अहमद की भी है शायद सर, रहती है, क्योंकि मैंने तब शायद हो गया जी, फरीद अहमद बाहर, भी हो मुझे गया, नहीं पता चला सारे आपने दिया प्रेजेंट हो अटेंडेंस। गए जी। फरीद अहमद भी हो गया, अब्दुल मनान भी हो गए। आप लोग खुश रहे। क्योंकि सर थैंक यू अभी भी फोन बंद होने वाला है, 1% पे है बिल्कुल। चलिए खैर खैरियत से आप नए साल का आगाज करें। रात को ज्यादा फनकारियां नहीं करनी सिलेंसर उतार के। सर जी ऑलराइट, आपको भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी हाँ जी, आपका आप कोई सबको प्रोग्राम है हैप्पी न्यू सर, ईयर। मिलके पहले चलते ये हैं कहीं पे बाय। हैप्पी न्यूरल नेटवर्क कर लें, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर भी कर लेंगे। बाकी सर अल्लाह ताला इस कोरोना को दफा करे इस नए साल में इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल करें, और आपको जो है ना ये वेट्स और फीचर समझ आ जाए, दैट विल बी ए मच आमीन। बिगर अचीवमेंट फॉर मी। इतनी कोरोना वैक्सीन इजाद करने वालों को खुशी नहीं होगी जितनी मुझे। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इट। ओके, यस सर। अब हसनैन ने हमें थोड़ा सा बीच में वो किया था, अब ये इसलिए मैंने बड़ा गोला बना दिया है। इसके अंदर जितने मर्जी आप चाहें छोटे छोटे गोले बनाते जाएं, इट देयर इज नो लिमिट। ठीक हो गया जी, गोले ही गोले जितने भी आपने बना लिए। द पॉइंट आई एम गोइंग टू emphasize is that if we have, let's suppose, 3 inputs and they are given the alphabets A1, A2, A3, we can have any number of outputs. Let's say B1 and B2. Agreed? It is a complex neural network. It does यस not matter कि इसके अंदर कितनी layers आई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। Are you getting my point? यस सर। अब ये गौर से बात सुननी है। If this side is change, ये arrows towards the input जा रहे और ये आउट जा रहे। अगर इन डिग्री की तरफ जो इन साइड है, if incoming values are changed, बल्कि इसे ज्यादा बेहतर लिखता हूं, यहां इरेज करते हैं एंड लेट मी राइट इट अगेन। इफ any of the incoming values are changed, then all outputs may be affected. Yes or no? यस सर। ठीक हो गया। जी सर बिल्कुल अगर मैं A1 को चेंज करता हूं तो बिल्कुल इट सर। इज नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ B1 चेंज होगा। नो, सर क्योंकि ए A1 सब की कुछ जा रहा है, कंट्रीब्यूशन B को हर 1 को जगह भी है। जा रही है, B2 को भी जा रही है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। एग्रीड? वेरी नाइस। यस ऑल राइट, नाउ इफ B1 इज अपडेटेड, अब इस तरफ अगर मैं चेंज करता हूं, इफ B1 गेट्स चेंज्ड, ये यहां लिख देते हैं, इफ एनी ऑफ दी, ये इनकमिंग वैल्यूज थी, ये आउटगोइंग है। ठीक हो गया। इफ एनी ऑफ द आउटगोइंग वैल्यूज गेट चेंज, आप नोटिस करते हैं कि B2 जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है।
there is no way it cannot be attributed to only one of the inputs. ये वही बात है जो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, चेन रूल में पढ़ते हैं. अगर हमारे पास B2 चेंज हो जाता है, we cannot say that it was only and only due to A2, because it will be partially changed by A1, partially by A2, partially by A3. Agreed or not agreed? यस सर. सर ये जो B2 है इन टर्म्स ऑफ वेट और वो सारा कुछ कह रहे हैं ना आप? यस, B2 को मैं खुद मैनुअली चेंज कर देता हूँ ना, या किसी वजह से चेंज होता है. यस सर, वो जी ठीक है सर. ठीक हो गया ना. आंसर में जिस तरह अभी आपके पास आया था ऊपर. जी सर, आप वो बैक प्रोपोगेशन में कहना चाह रहे हैं ना कि जब हम वो बैक वैल्यूज चेंज होती हैं. अभी फॉरवर्ड है, अभी फॉरवर्ड है. यस सर, मैं समझ गया. अभी फॉरवर्ड है. जिस तरह अभी हमने देखा था, दो फीचर वेक्टर थे. अगर आपके पास किसी का आंसर 17 आया था और किसी का 14 आया था, तो 14 वाले में आप ये नहीं कह सकते कि इट वाज बिकॉज ऑफ A3. इट कुड बी बिकॉज ऑफ A2 एंड A1. इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है. सो द पॉइंट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज दैट कि यहां जब आप करेंगे, इफ एनी ऑफ द इनकमिंग वैल्यूज आर चेंज्ड, देयर विल बी डेफिनेटली ए चेंज इन द आउटपुट, लेकिन वो सब में आएगी. All right. Yes, but sir, if you're looking at these B1 and B2, you cannot pinpoint कि इसको यहां से A2 ने सिर्फ अफेक्ट किया. It will definitely be more than A1 or A2 or A3. So what does this tell us? That whenever we are doing forward linear combinations and non-linearity उसमें हम डाल रहे हैं with the transfer function. अच्छा, एक और चीज, अब आप लोगों ने फंसा ही लिया तो फिर आप भी फंसे थोड़ा सा. यहां तक अगर this is a quick question for all of you. If I do not go beyond this point, गौर से सुने, mx plus b, this is just a linear combination. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Agreed or not agreed? Yes, sir, I agree. नहीं, आप स्नैन आप तो एग्री कर गए, बाकियों से भी पूछने देना. Do all of you agree? ये जो सिंपल इक्वेशन है, इट इज ओनली एंड ओनली, ये भी लिखी हुई है, दिस इज ओनली एंड ओनली ए लीनियर कॉम्बिनेशन. यस सर. ये आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ के आए हैं और बड़ा कुछ आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. लीनियर कॉम्बिनेशन, add, multiply and add, multiply and add. When we do the sigmoid or the tan hyperbolic, यहां जो ट्रांसफॉर्मेशन है, this transformation is a non-linear transformation. Yes or no? Yes, sir. जब हम कोई भी सिग्मोइड यूज कर रहे हैं, यस सर, उसकी पावर में कुछ ना कुछ आ रहा है तो नॉन लीनियर. पक्की बात है. यस सर.
नहीं, कहीं ना कहीं आप जो है ना वो शक की बुनियाद पे जवाब दे रहे हैं। नहीं सर, अब क्लियर हो गया, उसकी पावर में कुछ ना कुछ था। नहीं सर वो ओके ओके, वेरी गुड, ऑलराइट। सो वी हैव सीन दैट इट हैपेंस। और अगर हमारे पास इससे भी लंबा डीपर नेटवर्क हो, let's suppose we have this kind of information and then it is being fed to this, यहाँ एक और बना लेते हैं, ये iris flower वाला ही है। So we have x1, x2, x3, x4 going into this layer, which goes into this layer, which goes into another layer. So what is happening here? Let's say ये जो layer हमने बनाई है, we call all of these, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये फायदा है सॉफ्टवेयर का, that we are not limited to, let's say this is x के बाद इसको b कह देते हैं, b1, b2, b3, this is c1, c2, and let's say this is d1. Now the point is, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, this is a sequential circuit, एक sequential graph है। If we want to see what is the value of D, it will be linear combination, then activation, linear combination, then activation, activation. Finally, we will get the value of this D. But if you want to find out how much has been contributed to D, what is the contribution to this D1 by X3, we will have to use the sequence in the backward direction. सबसे पहले हम देखेंगे contribution of the C, और अब ये partial की domain में चला जाएगा। Why? Because there could be many C's, C1, C2, C3 जितने भी होंगे, let's say we call it I. Every C is going to get affected by a number of B's, let's call it J. Any number of B's will get affected by any number of the previous one. इसका नाम नहीं हमने को दिया था, let's say X ही कह देंगे इसको। ये और इसको हम कह देते हैं कि जब C विद रिस्पेक्ट टू B कह रहा होगा तो C की वैल्यू से अपडेट हो गई होंगी। अभी अपडेट नहीं हम कर रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं that we are trying to find how D gets affected by the input X, और ये पूरे का पूरा जो है ये आपका बन जाता है D with respect to X और उसकी K। ये जो मैंने लिखा है दिस इज योर चेन रूल। चेन रूल मैं हमेशा जो है वो उल्टी साइड से शुरू करता हूँ, फ्रॉम द वेरी एंड वर्किंग आवर वे बैकवर्ड्स। इसे आपने याद रख लेना है। एंड what is happening here is that we are trying to find out the contributions of each of the layers in between. We are estimating contributions of sequential layers. This is something very very important. अब इसी की बेस पे let us do a quick thing, और 3 मिनट आपके लेक्चर के रह गए हैं, so I don't want to keep you waiting from your। अच्छा, आपको पता ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर हो गया, हमारे से 6 घंटे आगे होता है वो। All right, don't want to keep you waiting. Let's quickly finish it. So we are going to have 3 things. The
least squares method in linear regression. पहले हम इसको कर लेंगे and later on we can apply it on the neural network. What happens is that you have the feature itself, you have the slope and you have the intercept. Slope लिखें इसको, m लिखें, w लिखें, theta लिखें, theta 1 theta 2 कर लें, जो भी कर लें. What happens is that all these get into a system which is mx plus b. This gives us an output. थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, even if we have to extend the lecture time by 2-3 minutes. This gives us an output. और output को हमने आज तक लिखा था y hat. Then this is going to get compared. This is the output of our linear regression system. एक आपके पास real number output आ गई. This gets compared with the actual. So we can say y hat लिख देते हैं ताकि आपको फर्क पता चल जाएगा, minus the y. This is the difference. और difference का जो technical name है that is residual. ये यहाँ मैं लिख देता हूँ. So we call it R, and then we said that the residuals we are estimating in the form of the squared error, and that gives us the total loss. Agreed or not agreed? Yes, sir. Jaldi se. Yes, sir. All right. So now what we are going to do is quickly go backwards. So we will say loss is equal to R squared, which is equal to this y hat minus y squared, which is equal to y hat क्या था, mx plus b minus the y और इसका पूरा squared. So this becomes our system. दूसरी क्लास में मैंने यही कहा था कि whatever I write in light blue color is by Professor Andrew Ng. एंड्रू एनजी सिर्फ ये कहता है कि जो आर स्क्वायर्ड है इसके साथ 1/2 लगा लें एज ए कांस्टेंट, उसका एक फायदा हमें हो जाएगा. वी विल सी व्हाट इज द बेनिफिट दैट वी गेट आउट ऑफ दैट. सो लॉस अभी जो है हमारे पास वो उसकी ये फाइनल फॉर्म हमारे पास आ रही है, और चूंकि यहाँ 1/2 लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है. वी विल सी द इफेक्ट ऑफ दैट. So what we have to do is find the contribution of one of these coefficients. Let's say m का हमने contribution देखना है with loss. So we have to go from here to here, then from here to here, and see sequentially what is happening. Let us quickly do it. We will say that I am over here. Loss हमें पता चल गया. So I say what is the contribution of the residual in the loss, and that is R square. All right. Yes, sir. Then if I want to find out, इसको खूबसूरत बना लेते हैं. What is the contribution in the loss because of this difference between the actual and the predicted? So I can say कि जो मेरी prediction थी that has given me some error which was reflected in R. So what I can say is the contribution of my prediction, and this will get multiplied with the loss that I found here.
So I will write it like this. और ये चेन रूल ही है, मैं सिर्फ इसको उल्टा लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूँ. Agreed? यस सर. वेरी गुड. आप लोग तो बड़ी तेजी से करते जाते हैं. ओके, सो if we find the derivative of this r square, what will be the derivative? It will be 2r. 2 इधर आ जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, so it will be 2r. What will be the contribution of this term, ये जो हमारे पास है, with respect to y hat? अब यहाँ एक चेंज आएगा, note it down, we will be discussing it. So इसका आंसर ये बनेगा r के अंदर y hat की contribution. So differentiate this with respect to y hat and you will see कि इस टर्म में तो नहीं आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, so it will be 1 multiplied with जो पहले हमने कैलकुलेट किया, that is 2r. So 2r into 1 is what we have calculated up till now. The next step is that we have to go one step backwards and see what is the contribution of these coefficients in calculation of the predicted y. So again, सबसे पहले हम देख लेते हैं loss with respect to the coefficient m. अब ये फिर हम उल्टा चलेंगे. सबसे पहले we have to find out what is the contribution of slope in prediction. Then what is the contribution of prediction in the residual? Then what is the contribution of residual in the loss? So backward इसको करेंगे. Y hat के लिए m, with respect to m, when we differentiate, we see that it is only multiplying with x. So we will get the term x over here. B के साथ ये कुछ नहीं कर रहा. This will get multiplied with this 1. Very good. Which will get multiplied with this 2r. And this is the answer. इसको मजीद अगर हम लिख दें, 1 into 2 is 2. ये आपको पता होना चाहिए. So it is 2 into r into x. So 2rx is the derivative. इसका क्या मतलब है? Let us replace the terms. r की जगह I can write the actual thing, which was y hat minus y. So I can write here y hat minus y. Now what was y hat? This was again a calculation. So I can write mx plus b minus y multiplied with x and 2 over here. So this thing now is the final form of the loss. Sir? जी. अगर मैं डायरेक्ट ही उसका ले लेता जो आपके ऊपर हमने इक्वेशन बनाई थी, जैसे हम ग्रेडियंट में भी लेते रहे हैं. हाँ जी. तो सर तो अभी तो आंसर ये नहीं था ना. तो थोड़ा सा मुश्किल काम भी तो करना था ना हमने. ओके सर. Now एक चीज मैंने कहा था कि keep noting that if we say that the residual is y minus y hat, अगर हम इसको इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को थोड़ा फर्क करके लिख लें. If I say it is y minus y hat, the only difference is that when we take this derivative, अब इस टर्म में it will become minus 1. So this minus will appear in the final answer. Yes sir, जो x के साथ yes, हमारा आता था minus 2x आ जाएगा. All right. So it is just the arrangement of the predicted and the actual. पहले predicted लिखना है या पहले actual लिखना है, it is totally up to you. सिर्फ एक साइन माइनस का इसमें चेंज हो रहा है, nothing else. And then similarly for the loss with respect to b, ये भी हम कर चुके हुए, will be the prediction with respect to b
multiplied with residual with respect to prediction multiplied with loss with respect to residual. So if you look at this formula, B की contribution क्या है 1 है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कह रहा, itself है, दूसरी इक्वेशन में यूज नहीं होता. So we will write it as, इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाइड विद इसका आंसर विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास 1 आया था, मल्टीप्लाइड विद दिस इट वाज 2r. So the answer is 2r. अगर हमने यही वाली चीज की होती प्रिडिक्टेड माइनस दी एक्चुअल या एक्चुअल माइनस दी प्रिडिक्टेड, तो यहाँ सिर्फ माइनस का एक निशान आ जाएगा, अदरवाइज इट इज द सेम थिंग. So expanding this, what is 2r? 2r can also be written as 2 into y predicted minus the actual, which is equal to what is y predicted, mx plus b minus y, the whole thing multiplied with 2. So this is the answer of the loss with respect to b. Any question, any confusion? 9 मिनट ऊपर हो गए. लास्ट थिंग, एंड्रू एनजी बीच में आ गया. अगर यहाँ 1/2 लिखा हो, व्हाट विल हैपन? आई विल राइट 1/2 हेयर, और जब ये करेंगे तो इट विल बी 2/2, ये काट जाएगा आपस में. सो दिस 2 इज जस्ट गोइंग टू डिसअपियर इफ आई पुट द 1/2, और एंड्रू एनजी ने सिर्फ ये अचीव किया है इसके साथ दैट द कांस्टेंट is just a scalar multiple. So we can eliminate it by putting this 1/2 at the very beginning, and the refined formulas जो मैं light blue में लिखूंगा, these are from Andrew NG. It will just be mx plus b minus y multiplied with x, और ये जो है ये बन जाएगा हमारा mx plus b minus y. That's it. So in light blue are the Andrew Ng's concepts, और बाकी ये जो colorful हैं, these are what we have just derived. Rule of thumb याद रखें कि जो slope वाला है m वाला, उसको end पे x के साथ आपने multiply करना है. All right. So this is where we are going to stop today. आपका लेक्चर आज का, इस साल का आखिरी लेक्चर आपका, माशाल्लाह. सर एक चीज कहनी थी. हाँ जी, कहें सर. वो मेल वगैरह की का मैं पूछना था, वो आपने वो क्यूरी वगैरह सोल्व आज ही, पुराने साल का डाटा भी आज ही क्लियर कर देते. अगले साल करेंगे, आई एम टू लेजी. ना सर जी, नेक्स्ट ईयर आपको जो है ना, कल परसों इंशाल्लाह जो है ना अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. दैट विल बी माय न्यू ईयर गिफ्ट टू यू ऑल. तो स्टे सेफ. दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल अपलोड द लेक्चर. जी सर ये जो डी वाला जो हमने ऊपर न्यूरल नेटवर्क बनाया था, सी और डी वाला, सर ये एक मिनट दिखाइएगा. सर जी, व्हाट इफ अगर मैं आउटपुट B1 से डायरेक्ट डी पे भेजूं, तो वो फिर भी सीक्वेंशियल रहेगा? आप ये कह रहे हैं, अब मैं इसको लाइट ब्लू कलर से बनाने लगा हूँ. यस सर. व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज दिस लिंक. यस सर, बिल्कुल ठीक है. इट इज सीक्वेंशियल, लेकिन इसमें अब आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाएगी कि डी जो है इसमें सी का भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, विच इज इन इटसेल्फ डिपेंडेंट ऑन बी. बिल्कुल सर. ठीक हो गया. ये वाला जो आपने काम किया ना, ये गूगल का जो इंसेप्शन मॉडल है ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसमें ये काम होता है. ठीक हो गया. जिन्हें इन्हें इंसेप्शन कहते हैं, इन्हें ब्लॉक्स कहते हैं. इंसेप्शन ब्लॉक एक ही बनता है ना. ओके सर. ये गूगल यही करता है कि जो इनपुट आ रही होती है उसको इधर इधर डिवाइड कर देता है, उसके ऊपर कुछ करता रहेगा, और एंड में फिर उसको जो है वो कंबाइन करने की कोशिश करेगा. दिस इज द गूगल्स आइडिया. यस सर.
और सर जो और वो इसमें से उसके इनपुट बाद निकाल के अलग ही एक न्यूरल yes, नेटवर्क पूरा बना देते हैं और वो उसके बाद वो कहता है जी एक स्किप लेयर भी हो सकती है कि यहाँ से डायरेक्ट इनपुट से मैं इसको भी दे सकता हूँ जिसके ऊपर कोई मैंने काम नहीं किया हुआ। So this is the Google Net. ओके सर, जब थैंक यू सही सर। टाइम आएगा, let the time come, then we will do it. परेशान नहीं हो, घबराना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें क्लियर होती हैं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। हाँ, इकट्ठी हो गई ना तो फिर वो जंबल अप हो जाता है। All right जी, so this is the end of the lecture and hope to see you next year on Monday. सर वो एक FYP के बारे में आपसे एक मशवरा करना था सर। मैं सिर्फ ये जो है ना इसको कैंसिल कर लो, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। स्क्रीन शेयरिंग तो पहले बंद थी, तो आपको स्क्रीन जी कैसे सर। नजर आ रही थी? वेरी राइट जी, बताएं। बाकी लोग जा सकते हैं, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन लीव। हाँ जी सर जी, जो मैं FYP कर रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ मूरा के डाटा सेट पे, वो जो स्टैनफोर्ड का ना अपर एक्सट्रीमिटी वाला सर। अच्छा सर जी, अगर मैं जो लीरा है उसका स्टैनफोर्ड का जो लोअर एक्सट्रीमिटी वाला भी है, उन पे अच्छा। 2 टीम्स अलग अलग काम कर रही थी। अगर सर मैं उन दोनों को डाटा सेट को इकट्ठा करके और एक ही न्यूरल नेटवर्क उस पर ट्रेन करूँ तो सर वो एक नॉवल अप्रोच हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दोनों के फीचर्स अलग हो जाते हैं। और सर तो इसमें बिल्कुल ना हो दो अलग अलग ही जो है ना पेपर पब्लिश हुए हैं, तो अगर हाँ। मैं इन दोनों को इकट्ठा करके तो कोई हो सकता है किसी कॉन्फ्रेंस में सर? बिल्कुल हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है, लेकिन उसमें आपने ये बताना होगा कि कंबाइन करने का फायदा क्या है। वाई, व्हाट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। हमेशा रिसर्च का ना कोई फायदा होना चाहिए। या जी तो सर। आप ये दिखाना चाह रहे हैं दैट यू कैन इम्प्रूव द रिजल्ट्स, या आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि इम्प्रूव नहीं होते इसलिए अलग अलग बेहतर है। सर वो उसके लिए ना मैंने थोड़ी इमेज प्रोसेसिंग की है जिसमें ऑटो कैनी और क्लाहे लगाया है। उससे सर ओके, जो इमेज है ना वो थोड़ी इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं वो खुद ही इतना इम्प्रूव कर लेते हैं इमेजेस को। आजकल वो भी अब जो है ना कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप फेक एंड दिस एंड दैट, उसमें बहुत ज्यादा आ गया। ऑटो एनकोडर है, स्टैक्ड ऑटो एनकोडर, नॉइज डी नॉइजिंग, ये बड़ा कुछ इसके अंदर आ गया। बट द पॉइंट इज कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव। हमेशा एक रिसर्च क्वेश्चन सामने रखें रिसर्च के लिए। जिस तरह आपका ये क्वेश्चन है कि कैन आई अचीव बेटर परफॉर्मेंस बाय कंबाइनिंग बोथ द नेटवर्क्स। जी सर। हमेशा रिसर्च क्वेश्चन जो हाइपोथेसिस आपका बनता है, रिसर्च हाइपोथेसिस, उसका आंसर यस या नो में आता है। दैट विल बी योर कंट्रीब्यूशन। और लेकिन सर अगर नो भी आए तो वो भी तो सर रिसर्च ही है ना? मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, जी ठीक है सर, यानी कि आप पेपर फिर भी अगर आप जब कर आते सकते हैं। हैं कमरा नंबर 301 में लैब में क्लास पढ़ने आते हैं, तो सामने एक एडिसन की सेइंग लगी हुई है कि आई डिड नॉट फेल 1,000 टाइम्स, आई जस्ट फाउंड 1,000 आइटम्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन लाइट बल्ब। यस सर। तो ये भी कंट्रीब्यूशन होती है कि क्या नहीं करना। लेकिन सर उसको वो वाकई उसके ज़्यादा फीचर्स आने से वो नेगेटिव भी जा सकती है, उसकी एक्यूरेसी पहले से भी कम हो सकती है। आई डोंट नो, एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। बिल्कुल हो भी सकती है और अच्छी भी हो सकती है। ओके सर, राइट ठीक जी, है सर, बस यही सर मेरा क्वेश्चन। थैंक यू सर। थैंक यू, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।